امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مودی سرکار پر ایک اور بار بھارت سے درآمدات پر مزید 25% ٹیرف عائد کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے بھارت پر مجموعی ٹیرف 50% ہو گیا۔ بھارت پر مزید 25% ٹیرف لگنے پر بھارتی میڈیا میں صف ماتم بچ گئی۔ امریکی صدر نے کہا کہ بھارت کو روس سے تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ روس سے قربتیں بڑھانے پر بھارت کو سزا دی جائے گی۔ بھارت ابھی بھی براہ راست یا بالواسطہ روس سے تیل درآمد کر رہا ہے۔ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری نہ روکی تو مزید ٹیرف بھی لگے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ کو DGISPR کا انٹرویو، کہا ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجی کارروائی پر رد عمل سے متعلق سوال پر کہا ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ آغاز بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگا۔ بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ ایوان اسرائیلی حکام کی جانب سے جاری بربریت اور اشتعال انگیز اعلانات کی شدید مذمت کرتا ہے۔ غزہ کے عوام تک انسانی امداد کی ترسیل کو روکنا تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان ایوان عالمی برادری سے تمام فوری اور مناسب اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پنجاب کا مقدر اب سازشوں پر نہیں بلکہ کارکردگی پر لکھا جائے گا۔ سفارتی محاذ پر پاکستان پھر سے ابھر رہا ہے۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کی معیشت کے مثبت اشارے دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنا گھر اپنی چھت پروگرام اور بلا سود قرض فراہمی کی تقریب سے خطاب، کہا شور شرابہ، فتنہ اور گالم گلوچ کی سیاست کارکردگی سے دفن ہو گئی۔ دنیا میں اپنی چھت اپنا گھر جیسے ماڈل کی مثال دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ 7 ماہ میں 64,000 افراد کو قرض دیا جا چکا ہے۔ قرض دہندہ اپنی آمدنی سے بآسانی قرض ادا کر سکے گا۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر فراہم کرنے کا ہدف ہے۔ اس منصوبے کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ کل کے احتجاج میں لوگوں کی عدم شرکت پر پارٹی میں اور بانی PTI سے بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا۔ احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کل کے احتجاج کو کامیاب قرار دیا۔ کہا کہ ملک بھر کے 170 اضلاع، تمام تحصیلوں، یونین کونسلز میں بھرپور احتجاج ہوا۔ کل عوام نے ثابت کیا کہ وہ بانی PTI کے ساتھ ہیں۔ بانی PTI نے احتجاج کے لیے 14 اگست کی نئی تاریخ دے دی۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولی بانی نے کہا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ بانی نے اپنی لیڈرشپ کو بھی پیغام دیا ہے وہ جیلوں اور گرفتاریوں سے نہ ڈریں۔ بانی نے بچوں کے پاکستان آنے کے بارے میں پوچھا۔ بانی نے ظلم و زیادتی اور دباؤ کے باوجود لوگوں کو احتجاج پر خوشی کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اپوزیشن کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش کر دی۔ PTI کو نااہلیوں کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا مشورہ، کہا کہ بیرسٹر گوہر کی باتوں کا تعلق عدالت سے ہے۔ قانون کے بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ مجرمان کو سزائیں قانون کے مطابق دی جاتی ہیں۔ 9 مئی مقدمات کا یہ فورم نہیں۔ PTI رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز نے الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہل قرار دیے جانے کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ عمر ایوب نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں فیصلے کو غیر قانونی قرار دے کر کالعدم قرار دینے کی استدعا کی۔ شبلی فراز نے بھی نااہلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر نااہل قرار دیا ہے۔ نااہلی کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ 9 مئی کیس میں سزا پانے والے PTI رہنما شبلی فراز اور زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے دونوں رہنماؤں کی ضمانت کے لیے دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زرتاج گل اور شبلی فراز کو 11 اگست تک حفاظتی ضمانت دے دی۔ دونوں رہنماؤں کو 11 اگست تک متعلقہ ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔
फैजाबाद एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म ना हो सका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के ड्यूटी जज अदालत नंबर 2 अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। आमिर कियानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। इस तकाजा के गवाहान के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो सके। अदालत में पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में 5 अगस्त को एहतजाज के मामले पर तहरीक इंसाफ के 16 मर्द और ख़वातीन कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस की जानिब से मुकदमे में 16 दफा शामिल की गई। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से मर्द और ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया था। ख़वातीन PTI के झंडे लिए नारेबाजी कर रही थी। कारकुनान को थाना लोही भेड़ शिफ्ट कर दिया गया। पॉपो एक्ट समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज़ कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुल्क भर में अवाम के समंदर को सड़कों पर देखकर हुकूमत की कांपें टांग गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, वानी PTI की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कामयाबी के साथ मार्च की क़यादत की। एहतजाज में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉल मौसूल होते ही हम दोबारा निकलेंगे, चाहे इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर। 9 मई कोई फसाना या ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत है। 9 मई को सरकारी इदारों पर हमले किए गए। कहा जा रहा था कि शवाहिद और अदालतें किधर हैं। 2 साल में 9 मई से मुतालिक मुकदमा चले, फैसले हुए। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर फैसलों पर एतराज़ है तो कानून के मुताबिक अपील करें। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। मौलाना फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए ताउन कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 1,45,000 की नई बुलंदी का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,45,088 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। पाकिस्तान की मौशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 1,45,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि कारोबार में तेज़ी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली है। आधे से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुके। वजीर दिफा का बड़ा इंकशाफ। ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल में प्रॉपर्टी लेने के बाद शहरियत की तैयारी कर रहे हैं। ये वतन अजीज को पलीद कर रहे हैं। एक्स पर पैगाम। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को मगरमच्छ करार देते हुए कहा कि ये मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान IMF की 5 में से 3 माली शराइत पूरी न कर सका। सूबे की 1.2 ट्रिलियन रुपए के सरप्लस की शर्त पूरी न हो सकी। 12.3 ट्रिलियन की टैक्स वसूलियों और 50 अरब की स्कीम में नाकाम। 2.4 ट्रिलियन रुपए का बुनियादी बजट सरप्लस हदफ हासिल कर लिया गया। शराइत की जुज़वी तकमील के बावजूद IMF से मुज़ाकरात में मुश्किलात का इम्कान नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफ़ीर फ़हाद सुलेमान खल अल ख़ारूसी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मज़हब, सक़ाफ़त और इक़दार पर मबनी हैं। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है।
पाकिस्तान और तुर्किया की बहरी अफवाज की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान पहली दो तरफा मशक का कराची में इनकाद। मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग और जंगी मंजरनामों पर मुश्तमिल ऑपरेशन के मुजाहरे भी किए गए। ISPR के मुताबिक मशक के दौरान समंदर और खुश्की पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन का अमली मुजाहरा किया। इस मशक का बुनियादी मकसद साहिली इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन की तैयारी और हिकमत अमली को मजीद मौसर बनाना था। दो तरफा मशक पाकिस्तान और तुर्किया के बहरी अफवाज के माबैन ताउन और बाहमी हम आहंगी के फरोग में एक अहम संग मील साबित हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास PIMEC का तीसरा एडिशन 3 से 6 नवंबर 2025 तक कराची एक्सपो सेंटर में मुनाकिद होगा। वज़ीर आला सिंध की ट्रैफिक, सफाई और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि PIMEC ब्लू इकॉनमी, कौमी सलामती और आलमी रवाबित के लिए अहम है। पाकिस्तान को जदीद और मौसर बहरी ताकत बनाना हमारा हदफ है। बहरिया टाउन करप्शन केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। FIA के बहरिया टाउन के अस्पताल पर छापे के दौरान 1 अरब 12 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। वफाकी वज़ीर इत्तलात का वीडियो बयान कहा कि अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। ये तमाम शवाहिद हुंडी हवालों को साबित करते हैं। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने के लिए अरबों रुपये बैरून मुल्क भेजे गए। गैर कानूनी तौर पर हुकूम की मुंतकली से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा। FIA की टीम पहुँचने पर रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। नैब का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में 7 मजीद मुल्जिमान के असासे मुंजमद करने का फैसला। हुक्काम की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में दरखास्तें दायर की जाएंगी। ज़राए का कहना है कि कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में जिन मुल्जिमान के असासे मुंजमद किए जाएंगे उनमें 4 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। मर्द मुल्जिमान में हबीबुल्लाह, रियाज, नसीर, तौसीफ शामिल हैं। मुल्जिमान ने बेनामी इदारों के नाम पर असासे बनाए हैं। करोड़ों रुपए के मनकूला और गैर मनकूला असासे बनाए। बहरिया टाउन ने अपनी जायदादों की नीलामी रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील में नीलामी का अमल रोकने की इस्तदा। बहरिया टाउन ने अदालत के फैसले के खिलाफ फारूक ऐश नाई के तवस्सुस से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। अपील में इस्तदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए और अपील पर फैसले तक बहरिया टाउन की 7 अगस्त की जायदादों की नीलामी का अमल रोका जाए। कौमी असम्बली ने फौजदारी कवानीन में 2 तरामीम की मंजूरी दे दी है। खातून के कपड़े फाड़ने और हाई जैकेट से मुलाकात या ताल्लुकात पर सजाए मौत खत्म कर दी गई। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल 2025 ऐवान में पेश किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौर में खातून के कपड़े फाड़ने पर सजाए मौत मुतारिफ करवाई गई थी। इस शिक का गलत इस्तेमाल किया जाता है। तरमीम के तहत इस जुर्म पर सजाए मौत खत्म करके सजा कम की जा रही है। राय शुमारी पर ऐवान ने दोनों तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशस्तों पर बहाल होने वाले 18 अरकान कौमी असम्बली को लॉटरी निकलने का इंतजाम। साल भर की तनख्वाहें एक साथ मिलने का इम्कान। पुरानी तनख्वाहें देनी है या नहीं, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ताहाल कोई हतमी फैसला न कर सके। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की मंजूरी के बाद रवा इजलास के दौरान फैसला मुतवक्के है। जनवरी 2025 से रुकन कौमी असम्बली की तनख्वाह 7,30,000 हो चुकी है, जबकि मंजूरी की सूरत में हर MNA को 58,71,000 रुपये बकाए जात मिलने का इम्कान है। अखराजात में कमी के दावों और किफ़ायतशुमारी इक़दामात के दावे हवा में उड़ गए। वफाकी हुकूमत के उमूर चलाने का खर्चा 14% बढ़ गया। अखराजात हुकूमती हदफ और नजरसानी तखमीने से भी बढ़ गए। वजारत खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2024-25 के दौरान हुकूमती उमूर चलाने पर 892 अरब रुपए खर्च हुए। रवा माली साल में हुकूमती उमूर चलाने के अखराजात का हदफ 971 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है।
वफाकी हुकूमत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड के क़याम का फैसला। इग्नाइट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड का 30% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड को दिया जाएगा। दस्तावेज के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेटवर्क भी कायम किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में कायम किए जाएंगे। मसनूई ज़हानत के शोबे में जिद्दत के लिए इनोवेशन फंड और वेंचर फंड के क़याम की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का सेनेट कमेटी बराए रेलवेज के KCR के लिए कोशिशों का खैर मकदम। कहा KCR के लिए एशियाई तरक्याती बैंक समेत आलमी शराकतदारों से राब्ते जारी हैं। सिंध हुकूमत वज़ीर आला सिंध की क़यादत में KCR की हर सूरत तकमील के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत KCR को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेगी। मनसूबे में हायल रुकावटों के हल के लिए वफाकी हुकूमत से ताउन की उम्मीद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकिस्तान की तारीख की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में तजुर्बाती सफ़र। दौरान सफ़र सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट का मुआयना और SRT में मौजूदा सहूलतों का जायज़ा लिया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने SRT के बारे में वज़ीर आला पंजाब को तफसीली ब्रीफिंग दी। मरीम नवाज ने रोड टेस्ट ड्राइव का भी जायज़ा लिया और आम ट्रैफिक के दरमियान SRT की रनिंग भी चेक की। मरीम नवाज ने कहा कि SRT चलने से लाहौर की खूबसूरती दोबाला होगी। गुजरावाल और फैसलाबाद में भी SRT की खुशखबरी आ रही है। मुल्क में बढ़ती बेरोजगारी, मुआशी अदम इस्तेहकाम। रवां साल के इब्तदाई 6 माह में 3.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए। मुल्क छोड़ने वाले अफराद में आला तालीम याफ्ता अफराद समेत इंतहाई तकनीकी अफराद भी शामिल। डॉक्टर्स समेत नर्सिस के मुल्क छोड़े जाने से मुल्क के निज़ाम सेहत में भी मसाइल बढ़ने लगे हैं। अरब अखबार गल्फ न्यूज़ के मुताबिक हालिया चंद सालों में पाकिस्तान से नर्सिस बड़े पैमाने पर रोजगार की खातिर बैरून मुल्क मुंतकिल हुई हैं। करक में थाना गिरगिरी की हुदूद में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाकया। नामालूम मुसल्लह अफराद की FC एहलकारों की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग, 4 एहलकार शहीद। FC एहलकार फील्ड सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर और गाड़ी में सवार थे। पहाड़ की चोटी पर पहले से घात लगाए मुसल्लह अफराद ने अचानक हमला कर दिया। शोहदा का ताल्लुक लकी मरवत और टानक से है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। पेशावर के नवाही इलाके वर्सिक रोड पर फायरिंग, पुलिस इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पेशावर के SSP के मुताबिक इंस्पेक्टर अली हुसैन अपने 2 दोस्तों के हमरा गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हमले में पिस्तौल और सब मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से वफाकी दारुल हुकूमत के नालों में तुग़यानी। मूसलाधार बारिश से नालों में तुग़यानी के बायस बारा कहो, चक, शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। न्यू छठा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मकीनों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी से कई गाड़ियां डूब गईं, जबकि 6 से 7 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ मुतासिर होने का खदशा है। NDMA के नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने अगले हफ्ते मुमकिन मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। अलर्ट के मुताबिक दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर पानी का बहाव तेज होने का इम्कान है। सवात और पंजगुड़ा के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। वफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों की मद में डिजिटल मरदमशुमारी कराने का फैसला कर लिया। नेस्को समेत तमाम कंपनियों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मरासला जारी कर दिया। कंपनियों को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदमशुमारी की हिदायत जारी की गई। डिजिटल मरदमशुमारी में सार्फिन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर का रिकॉर्ड दिया जाएगा। ज़राए का बताना है कि घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई। कनेक्शन घर के मालिक या किराएदार के नाम पर होने का रिकॉर्ड भी मरदमशुमारी में शामिल किया जाएगा।
सवात और गिरदनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़ेर ज़मीन गहराई 61 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था। ज़लज़ले के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग घरों और दफातर से कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। ताहम किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं। कराची के इलाके हैदराबाद कॉलोनी में संगदिल बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम की भाभी को भी जान से मारने की कोशिश। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कातिल ने वालिद और भाई से रकम का मुतालबा किया। पैसे न देने पर एजाज तैश में आया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जेल चौरंगी पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। मकतूल नेमतुल्लाह रिटायर्ड प्रोफेसर थे। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। मुल्क भर में रवां साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 19 हो गई। कौमी इदारा सेहत के रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने तस्दीक कर दी। लकी मरवत के यूनियन काउंसिल सुलेमान खेल में 5 माह के एक बच्चे में पोलियो वायरस से पाया गया। इस नए केस के साथ खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान पोलियो केसेस की तादाद 12 हो गई, जो मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की दिफाई जारियत से सरहदों पर महाजराई का खतरा बढ़ने लगा। मोदी सरकार की ड्रोन हथियारों की दौड़ में तेजी से जनूबी एशिया का आम दांव पर लगा दिया। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय फौज ने बटालियन सतह पर ड्रोन्स को मुस्तकिल हथियार बनाने का फैसला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स को भारतीय जंगी हिकमत अमली में मरकजी हैसियत दी जा रही है, जबकि इन्फेंट्री, तोपखाने और बख्तरबंद यूनिट्स में ड्रोन्स चलाने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। सहाफ़ी का ट्रंप से पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल। कहा उनकी हुकूमत की तवज्जो फ़लस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज़्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर कुछ नहीं कह सकते। ये ज़्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रही हैं। इसराइल खुराक की तकसीम में मदद करेगा, जबकि अरब ममालिक रकम से मदद करेंगे। इसराइल की गजा में जंग का मकसद फ़लस्तीनियों को भूखा मारकर उनकी जिद्दोजहद को कुचलना है। गजा में इसराइली जंग का मकसद सियासी मकासद का हुसूल या यरगमालियों की रिहाई नहीं रहा। अब इसराइल की गजा में जंग अवाम को भूखा रखना, उनकी नस्ल कशी और फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद को ख़त्म करना बन गई है। मिस्री सदर ने कहा कि मिस्र ना तो फ़लस्तीनियों की जलावतनी में हिस्सा लेगा और ना ही ऐसे किसी फैसले की हिमायत करेगा। इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा रफ़ा गुज़रगाह से इमदादी सामान की गजा में तरसील बड़ी रुकावट है। मिस्री रफ़ा गुज़रगाह पर अब भी इमदादी सामान से लदे 5000 ट्रक खड़े हैं। मोदी सरकार का मकबूजा कश्मीर पर कब्जे का मंसूबा भी नाकाम। मकबूजा कश्मीर में पहली बार अवामी सतह पर 5 अगस्त के इक़दामात की खुली मुखालिफत की गई। रिपोर्ट के मुताबिक शोपियां, श्रीनगर और दीगर इलाकों में अवाम सड़कों पर निकल आए। कश्मीरी अवाम ने तवील खामोशी तोड़ दी और भारतीय बयानिया बेनकाब हो गया। कश्मीरी अवाम ने दो टोक पैगाम दिया, खामोशी का वक्त ख़त्म हो गया। कश्मीर की गलियों में एहतजाज की सदाओं ने भारत की नींदें हराम कर दी। भारतीय मीडिया खामोश रहा, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया ने खबर दे दी। लेबनान की हुकूमत ने गैर सरकारी असलहे को सरकारी तहवील में लेने का प्लान कर लिया है। लेबनानी हुकूमत ने फ़ौज को रबा साल के आखिर तक तमाम हथियार कब्जे में लेने का हुक्म दे दिया। प्लान का मकसद मुमकिन तौर पर हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना है। हिज़्बुल्लाह की जानिब से मुतअद्दिद बार गैर मुसल्लह न होने का ऐलान सामने आ चुका। इसराइल ने जनूबी लेबनान से इनखला के लिए हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की शर्त रखी थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हर तरफ कौमी परचमों की बहार। लाहौर, कराची, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सब्ज़ी लाली परचम, बैजेस, टोपियों और झंडियों के स्टॉल्स सज गए। बच्चे और बड़े सभी जोश खरोश से खरीदारी में मसरूफ। हर कोई यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचमों और बरक़िया कुमकुमों से सजाने लगे। ISPR ने नया मिली नगमा जान से प्यारा पाकिस्तान जारी कर दिया।
नगमे में ना सिर्फ पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत को शायराना अंदाज में समोया गया, बल्कि हर पाकिस्तानी चाहे वो सिपाही हो या किसान, मजदूर हो या लोहार, वतन की तरक्की और सलामती का सुतून करार दिया गया। नगमे के बोल उठे कदम जो गैर के हम धूल चटा देंगे, दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान में माह अगस्त में एक साथ 4 तातीलात का इम्कान। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 14 अगस्त को यौम पाकिस्तान पर आम तातील होगी। चहलुम इमाम हुसैन जुम्मा 15 अगस्त को मनाया जाएगा। चहलुम की तातील विफाकी तातीलात में शामिल नहीं। सूबाई सतह पर मकामी तातील की सूरत में मुतल्लिका इलाकों में छुट्टी होगी। नॉर्वे कप के दौरान पाकिस्तान की मुस्लिम हैंड की टीम का फुटबॉलर अमानुल्लाह रऊफ बलोच ओस्लो में गायब हो गया। तर्जुमान मुस्लिम हैंड्स फुटबॉल टीम के मुताबिक फुटबॉलर अमानुल्लाह रऊफ बलोच का ताल्लुक कराची के इलाके लियारी से है, जो नॉर्वे कप के पहले ही रोज़ ओस्लो में गायब हो गए। फुटबॉलर अमानुल्लाह इवेंट के इस्तकबालिया तकरीब में भी नहीं आए। अमानुल्लाह का पासपोर्ट नॉर्वे में पाकिस्तानी सफारत खाने में जमा करा दिया। पुलिस समेत पाकिस्तानी सफारत खाने को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में भारत के अभिषेक शर्मा ने पहली पोजीशन ली, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड दूसरे और भारत के तलिक वर्मा तीसरी पोजीशन पर मौजूद। पाकिस्तान के हसन नवाज और साइम अयूब की T20 बैटर्स की रैंकिंग में लंबी छलांग। हसन नवाज 24 दर्जे बेहतरी से 30वें, साइम अयूब 25 दर्जे बेहतरी से 38वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स की रैंकिंग में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आलमी दर्जाबंदी में बेहतरी। पाकिस्तान के सुफियान मुकीम 35वें नंबर पर पहुंच गए। आईसीसी ने जुलाई 2025 के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ की नामजदगियां कर दी हैं। मर्दों और खवातीन दोनों कैटेगरीज के खिलाड़ी शामिल। मर्दों की कैटेगरी में भारत के कप्तान शुभमन गिल, जनूबी अफ्रीका के ऑलराउंडर वयान मिल्डर और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को जुलाई की शानदार कारकर्दगी पर नामजद किया गया। खवातीन की कैटेगरी में इंग्लैंड की 2 स्टार क्रिकेटर्स सोफिया और सोफी के अलावा आयरलैंड के कप्तान गैप लुइस को भी नामजद किया गया।